بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نرگس کا پھول سونگھنے سے برس، جنونی اور جذام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو ایک سفید جانور یعنی خرگوش اس گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ سونف کو دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے تو بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، ہمیشہ فٹ رہتی ہے، کبھی پارلر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کرتا ہے۔ یہ ایک سستی سی سبزی ہے لیکن موٹاپے کے لیے فائدہ مند ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعوں کو صدقہ دینے سے والدین پر عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہو اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت ہوتی ہے۔ جو شخص ہر روز کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دیں، جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جس میں کہیں بھی درد ہو تو ادرک کی چائے پینے سے آرام ملتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کے لیے بہترین علاج ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جائیں، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جائے گا۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈال لیں، خالی پیٹ نہانے سے آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائیں تو درود پاک پڑھنے سے فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ بولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ قضائے حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے، انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ پردہ عورت، تنگ باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بے حیا ہوتی ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا، جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا بے سکون رہے گا۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں نہیں دکھتی۔ 2 خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوتا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہوتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا وہ 1 ہفتے کے اندر مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ بلی گھر میں بچے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے، ورزش نہیں کرتے، محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پیو، یہ خون صاف کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں میں کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ غصہ بے وقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں، اس میں تھوڑی سی پیسی کالی مرچ، زیرہ، نمک ملا کر پی لیں، کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ دل کو ہمیشہ تندرست رکھنا ہے، پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں، ذہنی دباؤ کو کم کریں، گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ معدے میں جلن ہو فوری علاج کروائیں۔
शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। रोज़ाना वर्जिश करें, यादाश्त बढ़ेगी। चंद ग़िज़ाएँ रोज़ाना खाने से अदरक का इस्तेमाल करें। रोज़ाना 3 खजूरें खाने का मामूल बनाएं। पुदीने की चटनी ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूध में गुड़ डालकर इस्तेमाल करने से ताकत बढ़ती है। चेहरे पर प्याज का रस लगाने से चेहरे के दाग धब्बे नहीं होते। लंबे नाक वाली औरतें दिमाग की तेज होती हैं। सर पर मूली का रस लगाने से बाल सफ़ेद नहीं होते। ऐसी औरत सुबह के वक्त काजू खाए। जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो रही वो दूध में शहद शामिल करके पिएं। लकड़ी का कंघा इस्तेमाल करो, बालों में चमक आएगी, बाल मजबूत होंगे। पेट की चर्बी को पिघलाना है। रोटी के साथ प्याज पानी में लीमू डालकर पिएं। दिन में सिर्फ 2 मरतबा खाना खाओ। खजूर दिल को कुव्वत देती है, जिगर गुर्दों को मजबूत करती है, कमर का दर्द नहीं होता। जिन लोगों का पेट साफ ना रहे लोग दूध के साथ लौंग का इस्तेमाल करें। चने की दाल उबालकर पानी से चेहरा धोने से झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं। चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों का दिमाग कमज़ोर होता है। काले रंग का दुपट्टा पहनने वाली औरतों के बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। जो औरत नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खाती है ऐसी औरत हमेशा जवान नज़र आती है। रोज़ाना योगा करने से आप पेट की बीमारी और शुगर जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। रात को उठकर पेशाब करने से सैकड़ों बीमारियां दूर होती हैं। जो औरत रोज़ाना अखरोट खाती है उसका दिमाग कमज़ोर नहीं होता। लहसुन और अदरक दोनों ऐसे मसाला हैं जिनकी तासीर गर्म है। ये क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में मदद देते हैं। अदरक और लहसुन दोनों वज़न कम करने में मदद देते हैं। ये सोजिश और एंटीऑक्सीडेंट अज़ा हैं। वो वज़न कम करने में किस तरह मदद करते हैं। अदरक मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। लहसुन कैलोरीज में कम और मेटाबॉलिज्म को फ़रोग़ दे सकता है। मुश्तरका होने पर वो और भी ताकतवर और फ़ायदा देते हैं। इनका इस्तेमाल मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाले फ़वाइद को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए सुबह अदरक की चाय पिएं। इन्हें एक पाउडर में मिला दें। लहसुन और अदरक को एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल भी जाना जाता है। इन्हें कॉस्मेटिक्स और मुख्तलिफ तेलों में इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन को मकामी तौर पर मुहासों के इलाज के लिए लगाया जाता है। अदरक और लहसुन को रोज़ाना खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह नहार मुँह देसी लहसुन का एक टुकड़ा खाने से वज़न में कमी आती है। इससे शुगर ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। सेब, माल्टा, अनार ऐसे फल हैं जिनके इस्तेमाल से क़ुव्वत हाफ़ज़ा यानी सबक याद करने की ताकत बढ़ती है। चेहरा निखरता है। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए सोने और उठने का वक्त परिंदों के जैसा बनाओ, चिड़ियों के जैसा बनो, क्योंकि रिस्क की तलाश का मुनासिब वक्त परिंदे ही इंतखाब करते हैं। हफ्ते में एक बार कुछ सफ़र ज़रूर किया करो, आपका दिल मजबूत रहेगा। खाने को हमेशा चुबा चुबा कर खाओ। नाश्ते में पानी या दूध में इसबगोल मिलाकर पी लेने से मैदा ख़राब नहीं होता। चेहरे की जिल्द नरम मुलायम ताज़ा रहने के लिए दूध इस्तेमाल करें। मैदे की तेज़ाबियत को दूर भगाने के लिए अदरक का इस्तेमाल करें। मुंह से बदबू आने लगे जामुन का इस्तेमाल करें। मैदे का दर्द हो टेंडे का सालन खा लें। खड़े होकर पेशाब मत किया करें, दिमाग की कमज़ोरी होती है। सोने से कबल फालसे का शरबत पीने से मैदा ठंडा और ठीक रहेगा। पुदीने का इस्तेमाल करने से जिस्म की जिल्द निखरती है। शिमला मिर्च खाओ, बंद कान खुल जाएंगे। ज़्यादा गुस्सा करने से दिमाग कमज़ोर होता है। पेट में बनने वाली गैस को मत रोको, जितना हो सके खारिज करो वरना दिमाग पर असर पड़ेगा। हर दूसरे दिन अपने घर के दरवाजे खिड़कियां ताज़ा आबो हवा के लिए ज़रूर खोलें। अपने घर में सूरह रहमान की रिकॉर्डिंग रोज़ाना ज़रूर चलाया करें। बज़ाते खुद अपने और अपने घर वालों पर बेहतरी महसूस होगी। सोते वक्त दिल की घबराहट महसूस होने लगे, पेशाब कर लो, दिल की घबराहट दूर हो जाएगी। रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लहसुन काट कर मसल दें, झुर्रियाँ नुमायाँ नहीं होंगी। दिल के मरीज़ लोग आलू बुखारा मत खाएं। हल्दी जिगर को ख़राब होने से बचाती है। मसवाक करने से मैदा ठीक रहता है। थकावट परेशानी की हालत में अदरक की चाय पिएं।
हरी मिर्च ऐसी है, रोजाना इस्तेमाल करने से जोड़ मजबूत होते हैं, पट्ठों में ताकत आती है। अपने दांतों को हमेशा के लिए ठीक रखना है। खाने के बाद अच्छी तरह कुली करें। बवासीर के मरीज लोगों के लिए लोकार्ड का फल हिम्मत से कम नहीं। चावलों के ऊपर पानी इस्तेमाल करने से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। खाली पेट अदरक चुभा लिया करें, पेट की चर्बी खत्म हो जाएगी। निहार मुंह उबला हुआ आलू खाने से बदन में चुस्ती आती है। सोने से कबल आलू बुखारा खा लेने से बेचैनी करीब नहीं आएगी। हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करने से कमर की हड्डी कभी कमजोर नहीं होती। केले के छिलकों को दांतों पर रगड़ने से दांत मजबूत होते हैं। मुर्गी के गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल जिस्म चर्बी को बढ़ाता है। लीची गर्मियों का नायाब तोहफा है, कुछ ही अरसे के लिए आता है। ब्लड प्रेशर के मरीज लोगों के लिए नहायत मुफीद चीज है। लीची प्यास को बुझाती है, जिगर के मरीज के लिए फायदेमंद है। प्याज सफेद बालों के लिए बेहतरीन है। फालसा खाकर ऊपर से नीम गर्म पानी पी लीजिए, दांत की मैल साफ हो जाती है। नाज़रीन, कलवंजी से वजन कम करना है तो उसको पीस लें। 3 से 4 कलवंजी के दाने पीस कर उस पानी में शामिल कर दें। इसके बाद 1 चम्मच शहद मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और हर सुबह निहार मुंह पी लें। इस तरीके से न सिर्फ पेट की चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी बल्कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की चर्बी भी कम होकर वजन में वाज़ेह फ़र्क देखने में आएगा। नाज़रीन, अगर पेशाब हद से ज़्यादा बार बार आ रहा हो तो ये एक परेशान कुन मसला बन सकता है। इसकी वजूहात आम या किसी बीमारी से मुताल्लिक हो सकती हैं। अगर इस मसले को नज़रअंदाज किया जाए तो ये जिस्म में पानी की कमी या दीगर पेचीदगियों का बायस बन सकता है। कलवंजी और शहद आधा चाय का चम्मच कलवंजी का सफूफ शहद में मिलाकर खाएं। ये गुर्दों और मसाने को ताकत देता है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब आने का मसला ठीक हो जाता है। चेहरे में रंगत और निखार, जिल्द साफ करने के लिए कलवंजी को अगर रोगने जैतून में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। नाज़रीन, अजवाइन 4 तोला, 6 कतरे कलवंजी का तेल मिलाकर लीमू में डिबो दें और धूप में खुश्क कर लें। हर खाने के बाद 1 चुटकी फाँक लेने से इससे मैदा हमेशा ठीक रहेगा।